let's begin ray optics, and the subtopic is simple microscope. So you will be asked for what is a simple microscope, give its working principle, write an expression for its magnifying power, and so and so on. Okay, let us understand through a diagram first. All right, so simple microscope is not a very complicated instrument. First, let us understand that we have a axis, and on this we have this lens. Lens name is L, and then there is this, यहाँ पे इनकी, यहाँ पे क्या दे देते हैं, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट F. ओके, एंड देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट कैसे लें, एक ऐसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए बी. ओके, अब इस ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे एक ये पैरेलल रे लेके जाते हैं, एंड देन जितना ये एफ इधर था, हाँ किस में, ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, so here also will be F, so the ray would actually be going like this, and then another point would be like this, and when we carry it back, so we have a point, and this point, this is my final image. We can call it A dash, B dash. थोड़ा सा अटेंशन पे करें और इसको पीछे लेके जाएं, तो इसको A डबल डैश मार्क कर देते हैं, और O पॉइंट पे जो ये पॉइंट बनाएगा O पे, दिस इज O, इस एंगल का नाम हम दे देते हैं अल्फा. दिस इज माय अल्फा, एंड जो ऊपर वाला एंगल है ये वाला, let this be beta. If you see, alpha is the angle जो सेम पॉइंट पे आपको A डबल डैश B डैश, माने आपका क्या है, ये सेम हाइट है जो AB की है ऑब्जेक्ट की, तो ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा एट O. एंड इफ यू सी, हियर इज योर आई. ओके, and then this is your X and this is your D. हम चीजों को कहाँ देखते हैं, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिवीजन पे देखते हैं, विच इज अराउंड 25 सेंटीमीटर, राइट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल डी, याद रखना. ओके, सो आपको ध्यान देखें, आप ध्यान से देखें तो मैग्नीफाइंग पावर हमेशा हम एंगुलर मैग्निफिकेशन के रूप में देते हैं, याद रखिए. सो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ लिखेंगे m. m is nothing but beta upon alpha. Beta is that angle which is made by the image. बड़ी इमेज बनी है छोटी की, and alpha is that angle
which the same distance would have made as an angle alpha. So beta upon alpha, but because angle छोटे हैं, so beta becomes 10 beta and alpha is approximated to 10 alpha. Okay, so we write them 10 beta upon 10 alpha. Understood? Now what is 10 beta? AB upon OB, because आप ध्यान से देखोगे तो इट कैन बी सेड एट AB अपॉन OB. एंगल ध्यान से देखोगे तो AOB ट्राइंगल से लिया है हमने AB अपॉन OB. सिमिलरली 10 अल्फा जो होगा मेरा वो होगा A डबल डैश B अपॉन OB डैश, and that would be, ध्यान से देखें, A डबल डैश B डैश is same as AB, so I will write AB upon OB upon AB upon OB dash. Agreed? So my final discussion lands to OB dash upon OB, or we can say negative D upon negative X if we take sign convention. Agreed or not agreed? That means if we थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो मुझे क्या मिला, M is nothing but D upon X. But fact of the matter is Lenz's formula 1 upon V minus 1 upon U is 1 upon F. Agreed or not agreed? So V क्या है, 1 upon minus D minus 1 upon minus X equal to 1 upon F. Yes or no? And which means we can say that 1 upon X is equal to 1 upon D plus 1 upon F. और we can say D से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, I will get D upon X is equal to 1 plus D upon F. But D upon X तो मेरा मैग्निफिकेशन है M, which is 1 plus D upon F. So this is the magnification. So if focal length is shorter, greater is the magnifying power. Okay, understood or not? So किसी भी simple microscope का जो magnification होगा वो 1 plus D upon F होगा. So किस पे डिपेंड करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. स्मॉलर द बेटर. ओके, मोर मैग्नीफाइंग पावर. ओके, what is the working principle? Let us understand what is the working principle. When the final image is formed at infinity, and when we see an image at the near point, it causes some strain in the eye. Okay. Often the object is placed at the focus of the convex lens.
convex lens. So that parallel rays enter the eye, so that parallel rays enter the eye as shown in the figure. फिगर मैं अभी भी बनाऊंगा आपके लिए. Okay. The image is formed at the infinity. The image is formed at the infinity, which is more suitable and comfortable for viewing. Which is more suitable and comfortable for viewing by the relaxed eye. For viewing by the relaxed eye. अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे. सो नेचुरली सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सेस बनाएंगे और उसके बाद लेंस बनाते हैं. और फिर सपोज यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, तो क्या किया, यहाँ से एक रे ऐसे गई एंड ये यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे ये एफ है. सो ऑब्वियसली दिस इज एफ. 1 2 3 4 1 2 3 4. सो यहाँ से ये ऐसे निकल के चली गई और दूसरा ये यहाँ से ऐसे ये निकल के चली गई. ये कहीं पीछे जाकर के इन्फिनिटी पे मिलेगी. ओके, इन्फिनिटी. हाइट इज h. ओके, दिस इज बीटा. This also beta, and we can take the height, similar height, something like that, and ये मेरा d हो सकता है, d, और ये मेरी I का जो भी एंगल बनेगा ये मेरा अल्फा हो जाएगा, because that's my I. Okay, so in this case so if you see what will be my m will be बीटा अपॉन अल्फा, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. ओके, बिकॉज अल्फा बीटा आर स्मॉल, पता है ना. यहाँ कमेंट में आप लिख सकते हो अल्फा बीटा आर स्मॉल. ठीक है, एंड 10 बीटा क्या है, ये तो h है, तो h अपॉन एफ हो गया, नहीं हो गया, सीधे सीधे. एंड 10 अल्फा क्या है, ये h है. 10 अल्फा क्या है, h अपॉन d. तो लेट अस फाइंड 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए h अपॉन एफ एंड 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. This will be magnification m, which is h upon f upon h upon d, which is d upon f. Okay, so m has become capital D upon capital F. So magnification is 1 less than the magnification when image is formed at the near point, right? पहले 1 plus d upon f था, अब क्या हो गया सेकेंड सिनेरियो में d by f. क्लियर?
जब इमेज इन्फिनिटी में बनेगी मीन्स आवर आईज आर क्वाइट रिलैक्स्ड एट दैट पॉइंट, सो इट विल बी डी बाई एफ. But viewing is more comfortable in this case. No, there is one more course. We have to see composite when you are using two lens. Compound. Okay, compound. So, what are the uses of simple microscope? You see, watchmakers, jewelers, they use it to see small components more clearly while repairing or while making the jewels, ornaments, because we get a magnified image, right? Also printed letter, whenever we want to see printed letter, magnified print, छोटे हैं मैग्नीफायर लेकर के देखते हैं. ओके, सो बाकी मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ कहाँ और जगह यूज होते हैं? वर्नियर स्केल्स को पढ़ने में यूज होते हैं, बिकॉज यू वांट टू सी द बिगर थिंग्स. ओके, साइंस लेबोरेटरीज में यूज होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है, अब हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताते हैं. तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं. So as usual, we will make the axis या थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा बन गया. ओके, and the other one would be somewhere something smaller. So you know what do we call them? एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एंड इसको कहेंगे हम आई और आई पीस. आई पीस. Okay, now obviously you will have some FO, F of objective, also this way, and there will be another 1 2 3 1 2 3, so somewhere here. Okay, and then you will have your object somewhere here like this. So इसका नाम क्या दें? ए बी. सो कैसे जाएंगे? यहाँ से एक रे जाएगी ऐसे. ओके, एंड देन एक रे यहाँ से जाएगी ऐसे. एंड देन सपोज ये यहाँ से हम ले लेते हैं एक इसका ऐसे. सो वी विल हैव टू reframe this whole thing. ऐसे. So let us just make it like that, and from there
I'll have my object somewhere here. Okay, A, B. So we will see this as A dash B dash, and then from here we will make yet another thing. यहाँ से एक सीधे जाएंगे और ये मेरा यहाँ कहीं एक यहाँ पे जा करके एक मेरा ये बनेगा इमेज फाइनल, and this would be something like this. And then there is going to be yet another ray from here, and that with ये फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा ना. अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको. So possibly this would be your final. ओके, अब इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए. अब देखिए यहाँ ये मेरा आई ऑब्जेक्टिव लेंस है. यस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से क्या लिखोगे? UO लिखोगे, नहीं लिखोगे? यू विल कॉल इट UO. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे आप UF, फोकल लेंथ, राइट? सो FO कहोगे. F ऑब्जेक्टिव है ना, सो FO कहेंगे या नहीं कहेंगे? FO, राइट? एंड देन आपका इमेज कहाँ बनी है? A डैश B पे. ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज कहाँ बनी? A डैश B डैश. तो ये जो मेरी इमेज है, ये ओवरऑल डिस्टेंस, इसको क्या कहलाएंगे हम? ये क्या कहेंगे? VO. बोलो हाँ या ना. अब ये आई पीस के लिए ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये UE है, करेक्ट? और जो फाइनल इमेज बन रही है ये क्या कहलाएगी? कैपिटल D. अंडरस्टूड? अब तो ये सब समझ में आ गया होगा. ये FE हो गया यहाँ तक. समझ आ गया, नहीं आ गया? बोल सारा स्ट्रक्चर. और ये फाइनल क्या बना? A डबल डैश B डबल डैश. सो दिस इज द फाइनल इमेज. अब आपने देखा है फाइनल इमेज इज क्वाइट लार्ज. सो आपको आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों से मैग्निफिकेशन मिला, तो फाइनल मैग्निफिकेशन इज मच लार्जर. सो फाइनल इमेज इज योर A डबल डैश B डबल डैश. टेल मी यस और नो. ये समझ में आया नहीं है?
ऑब्जेक्टिव की वजह से ए बी का बना ए डैश बी डैश पे, और ए डैश बी डैश जो है ऑब्जेक्ट बना आई पीस के लिए, और आई पीस से फाइनल इमेज कहाँ बना, ए डबल डैश बी डबल डैश पे। यस और नो, टेल मी, क्लियर? तो इसको हमें, ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे डी डिस्टेंस पे मान लो मेरी इमेज हो, ये ओरिजिनल लेंथ ए बी है मेरी, रादर ए बी को उल्टा लिखना है, ए ऊपर बी ऐसे। सो डी डिस्टेंस पे ऐसे यहाँ मेरा आई है, तो मेरा अल्फा क्या होगा, यहाँ होगा ना अल्फा, ये अल्फा होगा, यस और नो, करेक्ट? और ये मेरा एच होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ, डी डिस्टेंस पे, जैसे तुम बुक पढ़ रहे हो तो कहाँ पढ़ते हो, रफली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो फाइन, जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो कहाँ दिखना चाहिए, डी पे, फॉर ए नॉर्मल आई। सो माई अल्फा कैन बी नोन थ्रू दिस, राइट? सो अब हम आपको इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। सो एम क्या होगा, ये आपको डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया, एग्जाम में डायग्राम ही अच्छे से बनाओगे। सो 50% कंट्रीब्यूशन डायग्राम का है, ओके? हाँ, नीचे वाला ट्रायंगल ये डी है, कैपिटल डी है ना ये, क्या? हाँ, दैट इज ट्रू, बट फाइनल इमेज का तो अलग ही बनेगा ना, बीटा, दैट विल बी बीटा। यहाँ देखिए फाइनल इमेज ये है, तो ये एंगल बीटा होगा ना तुम्हारा फिर फाइनल, टेल मी। इस ट्राइंगल का मीनिंग ये है कि इफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन, सपोज मुझे ऑब्जेक्ट मेरा डी डिस्टेंस पे होता, तो आई के साथ मेरा कितना एंगल बनता, यस, समझ रहे हो? बेसिकली मैग्निफिकेशन तो इसी के रेस्पेक्ट में देखोगे ना आप, भाई वही ऑब्जेक्ट मेरा डी डिस्टेंस पे है और उसी डी डिस्टेंस पे मेरा मैग्नीफाइड इमेज बना हुआ है। अब मुझे तो छोटे का बड़ा देखना है, यस और नो, यही ऑब्जेक्टिव है ना माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो आपको मैंने पहले समझाया था कि ऐसे ये तो तुम्हारा बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया मैग्नीफाइड, और यहाँ था छोटा। तो आप जब यहाँ आई से इस पॉइंट पे देख रहे हो तो ये आपका बीटा बना, नहीं बना? सपोज इस बेट पे ये बीटा बना, लेकिन ये आपका अल्फा होगा, तभी ना आप कंपेयर करोगे बीटा बाई अल्फा को, बोलो यस और नो? माने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको देखेंगे। अब हम m निकालते हैं, डायग्राम समझ में आ गया, डिस्कशन क्लियर हो गया, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स थे हमारे वो भी क्लियर हो गए होंगे, ओके? नाउ लेट अस सी हाउ माय m goes, like so what will be my m, let us start writing down। m is, मैंने बताया था बीटा अपॉन अल्फा, और बिकॉज बीटा एंड अल्फा were approximated to 10 beta upon 10 alpha because angles are pretty small. So what will I write here? H dash upon UE upon H upon capital D। इसको देख सकते हो आप easily, okay? So this is your H, this height is H, okay? And this was your H dash, sorry, single dash, H dash only, okay? And this is your H double dash, clear हो गया? So H dash upon D is my beta, clearly defined, and alpha is simply H dash upon D, all right? So what is it that we are going to get? H dash upon H क्या है? H dash upon H into D upon UE। So H dash upon H मुझे क्या मिलेगा? MO, magnification of objective lens, and D upon UE मेरे को मिलेगा ME। So my M is MO times
ME. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? साथ में एक बात और भी आप ध्यान दे सकते हो, MO इज H डैश अपॉन H विच इज नथिंग बट VO अपॉन UO, रिमेंबर, एंड दिस, ओके। एक तो ये हो गया, और आपको जो है आईपीस के लिए क्या मिलेगा? आईपीस के लिए ME विल बी व्हाट? D अपॉन UE, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, विच इज 1 प्लस D अपॉन FE, ओके। सो व्हाट इज माई MO डॉट ME? It is MO dot ME, which is my M. So you will say it is VO upon UO into 1 plus D upon FE. So this is your magnification of a compound microscope. Now थोड़ा approximation कर सकते हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो FO के पास बिल्कुल पास में ही होता है एक्चुअली. तो you can actually, if you want to do some approximation, then you can actually say that U naught is very much same as FO, है ना. तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो अच्छा. दूसरे आप कर सकते हो, V नोट को भी अप्रोक्सीमेट मान लो कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो L. V नोट क्या है? आपका ओवरऑल लेंथ टू लेंथ डेल, माने ऑब्जेक्टिव से आईपीस के बीच का लेंथ, और इसी को कैपिटल L कहते हैं. इसको ट्यूब लेंथ भी कहते हैं, ट्यूब लेंथ. तो इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या बन जाएगा ये? आप कहोगे नेगेटिव L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE. आप ऐसा भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो. और जब आपकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? एक और डायग्राम यूज करोगे. अब दूसरा सेगमेंट बी ले लेते हैं. When the final image is formed at infinity. तो अब हम क्या करें? अब तो बहुत सिंपल है. अब इसमें डायग्राम में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा. रीज़न क्या होगा? अब आप, मैंने ये बना दिया एक्सेस. तो सबसे पहले क्या बनाया? छोटा तो हमने ये तो ऑब्जेक्टिव बना दिया. और यहाँ बड़ा सा एक आईपीस बना दिया. अब हमने क्या करना है? एक चीज़ करनी है, काम करना है कि इमेज जो मेरा यहाँ तो मेरा है, आप क्या करो ऐसे कि भाई मान लो ये मेरा यहाँ बन गया ये, तो यहाँ पे इसको ऐसे ले गए हम, ऐसे, ओके. एंड देन एक मेरा एक ऐसे यहाँ से ऐसे गया, और दोनों ही फिर ऐसे. ये आपका आईपीस है, और ये यहाँ आपका पीछे चला गया ऐसे इन्फिनिटी पे. यहाँ कह सकते हो आप एट इन्फिनिटी, ओके. तो ये आपका यहाँ क्या हुआ? अब बेसिकली फोकल लेंथ पे हो ये FE, ये फोकल पॉइंट हो गया आपका. एंड आपकी जो ये है
ये एफ ई हो गया, तब ना आपका इमेज कहाँ बनेगा, तभी ना बनेगा जब फोकल पॉइंट पे होगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा। ओके तो ये हो गया मेरा एफ ई, दैट मीन्स यू ई इक्वल टू एफ ई। ऑलराइट, so what is it that you are getting here? This is your VO. All right, so this is VO, and if you take it here, so you can make this object somewhere here like this. Okay, so this is AB, and this is your, here is your focal point of object. Okay, and this is your objective lens. So the diagram is pretty simple, and this is your V naught. ओके सो जब इमेज, फाइनल इमेज जो है आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है, तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर अलाइनिंग इट इन सच ए मैनर दैट ए बी की जो ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है यहाँ पे एच डैश, वो कहाँ बन रही है, दूसरे लेंस पे एफ ई की पोजीशन पे बन रही है। क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर। सो माई यू ई इज एफ ई हियर, एंड वी नॉट जो है ये है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके सो यहाँ पे लिख लो यू ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, माने ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए। ओके एंड देन ए डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। ये क्लियर है या नहीं है, बोलो, है ना। और इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश, तो ये यहाँ क्लियर आ गया आपका। अब यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा, इस केस में तो बहुत ही सिंपल है, तो आपको, हाँ, तो एमओ जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से मिला था वो है एच डैश अपॉन एच, यू कैन क्लियरली से दैट इट इज एल अपॉन एफ ओ, एंड एफ ओ इज नेगेटिव, तो यू कैन यूज द नेगेटिव साइन। सिमिलरली एम ई क्या मिला, डी अपॉन एफ ई। तो सिंपली एम क्या हो जाएगा, एम ओ एम ई, विच इज हम उसमें क्या लिखेंगे, एल अपॉन एफ ओ नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। ओके सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लार्ज व्हेन बोथ एफ ओ एफ ई इज आर स्मॉल। बहुत क्लियर है, पहले भी जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का किया था तो उसमें भी फोकल लेंथ जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको। ये क्लैरिटी थी या नहीं थी। सिमिलरली एफ ओ एफ ई जितने कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ गया। एक आधा क्वेश्चन करना चाहेंगे इस पे, एप्लीकेशन कर रहे, सो लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन दिस। सो एक क्वेश्चन लेते हैं। A compound microscope with an objective, a compound microscope with an objective of 1.0 focal length, centimeter focal length, and an eyepiece and an eyepiece of 2.0 centimeter focal length, has a tube length of 20 centimeter, has a tube length of 20 centimeter. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power of the microscope.
microscope. If the final image is formed at near point, if the final image is formed at the near point of the eye, तो जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या करो, डेटा जो दिया हुआ है उसको लिख लो. ओके, सो डेटा क्या क्या दिया हुआ है, एफओ दिया है, एफओ लिख लो 1.0 सेंटीमीटर. ठीक है, एफई दिया है, लिख लो 2.0 सेंटीमीटर. ट्यूब लेंथ एल दी है 20 सेंटीमीटर. डी दिया है 25 सेंटीमीटर. राइट, सो एम क्या होता है, एम इज एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. यस और नो बोलो. तो अपने को क्या मिला है, 20 अपॉन 1.0 1 प्लस 25 अपॉन 2. So what is my magnifying power, 20 times 13.5. So my object will become how much, 270 times that big an object. So do you get it? ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. So let us close this.